నేవీ రాడర్ ప్రాజెక్ట్ మన దేశానికి అత్యంత ఉపయోగకరమైనదని నేడు అబ్దుల్ కలాం జయంతి నాడు శంకుస్థాపన పనులు ప్రారంభించడం హర్షణీయమని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. మంగళవారం వికారాబాద్ జిల్లా పోడూరు మండలం దామగుండం అటవీ ప్రాంతం నందు విఎల్ఎఫ్ పేరీలో ఫ్రీక్వెన్సీ నేవీ రాడర్ కేంద్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి నేవీ అధికారులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రాజెక్టు దేశానికి అత్యంత ఉపయోగకరమైనదని, దేశం యొక్క బలమైన మరియు భద్రత కోసం ఈ రకమైన స్టేషన్లను మన దేశానికి అత్యంత ముఖ్యమైనవని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేశ భద్రత, రక్షణ విషయంలో రాజకీయాలు చేయడం లేదన్నారు. పూర్వం కమ్యూనికేషన్ మరియు సమాచారం కోసం ఈగల్ మరియు ఇతర పక్షులను ఉపయోగించేవారని, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, ఇతర కమ్యూనికేషన్ల వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ ఉపయోగిస్తున్నామన్నారు. గత 30 సంవత్సరాల నుండి మన దేశం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తోంది. దేశం బలమైన మిలిటరీని నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉందని, కొందరు వ్యక్తులు ఈ ప్రాజెక్టు గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని సృష్టిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలిగించిందని మరియు పర్యావరణానికి, ప్రకృతికి ఎలాంటి నష్టం జరగదని అన్నారు. దేశ రక్షణ, భద్రతా విషయంలో కేంద్రం మరింత కట్టుబడి పనిచేస్తుందన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశ రక్షణ శాఖకు సంబంధించి నేవీ రాడర్ స్టేషన్ను ప్రారంభించుకోవడం హర్షణీయమని, మిషన్ను తయారు చేసే అన్ని వ్యవస్థలు హైదరాబాద్లో గుర్తింపు పొందినవి. దేశముంటేనే మనముంటామని, మనం ఉంటేనే ప్రాంతం ఉంటుందని అన్నారు. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన విషయంలో రాజీ పడకూడదని, ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలని కేంద్ర మంత్రి గారిని కోరడం జరిగిందన్నారు. దేశ భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడే పరిస్థితుల నుండి కాపాడే రాడర్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం హర్షణీయమన్నారు. I request everyone to take their seats. मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौकादल प्रधान अधिकारी मन्युलु रक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह गारिकी ज्ञापिकनी अंदजेयमनी कोरुतुन्नानु. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Yenomalu Revanth Reddy. नौकादल प्रधान अधिकारी मन्युलु तेलंगाणा राष्ट्र मुख्यमंत्री गारिकी ज्ञापिक अंदजेस्तुन्नारु. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri Bandi Sanjay Kumar. नौकादल प्रधान अधिकारी गौरवनीयुलु
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ బండి సంజయ్ గారికి జ్ఞాపిక అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Speaker of Telangana Legislative Assembly, Shri Gaddam Prasad Kumar. నౌకాదళ ప్రధాన అధికారి గౌరవనీయులు తెలంగాణ సభ స్పీకర్ శ్రీ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారికి జ్ఞాపిక అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Minister of Forest and Environment, Smriti Konda Surekha. నౌకాదళ ప్రధాన అధికారి గౌరవనీయులు అటవీ శాఖ మరియు పర్యావరణ శాఖ మంత్రి శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారికి జ్ఞాపిక అందజేస్తున్నారు. I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Chief Whip Shri Patnam Mahendra Reddy. నౌకాదళ ప్రధాన అధికారి గౌరవనీయులు చీఫ్ విప్ శ్రీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారికి జ్ఞాపిక అందజేస్తున్నారు. Now I would request Chief of the Naval Staff to present a memento to the ఈరోజు దేశ రక్షణలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంకొక కీలక అడుగు ముందుకు వేయబోతుంది. హైదరాబాద్ మొదటి నుంచి దేశ రక్షణ శాఖకు సంబంధించి డిఫెన్స్ కావచ్చు, ఆర్డినెన్స్ కావచ్చు, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, రకరకాల దేశ రక్షణకు సంబంధించిన మిసైల్స్ తయారు చేసే అన్ని వ్యవస్థలు హైదరాబాదు నగరంలో స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ కింద మనం హైదరాబాదును పెద్ద ఎత్తున గుర్తింపు పొందింది. ముఖ్యంగా మన నగరానికి, మన రాష్ట్రానికి 3 వైపుల సముద్రం ఉన్నది. బంగాళాఖాతం, అదేవిధంగా అరేబియా మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, ఇవన్నీ కూడా 3 వైపుల దేశానికి సముద్రం మన ప్రాంతానికి ఉంటే సముద్రంలో ప్రయాణించే షిప్లను కానీ మిగతా వ్యవస్థల్ని మానిటరింగ్ చేయడానికి ఈరోజు అత్యంత స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ వికారాబాదులో ఈ విఎల్ఎఫ్ను మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. చాలామంది చాలా రకాలుగా ఈ అంశాన్ని వివాదం చేయాలని, ఇక్కడ విఎల్ఎఫ్ నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతానికి లేదా ఈ వికారాబాదు జిల్లా ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందని అపోహలు కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను ఒక మాట స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. సేమ్ విఎల్ఎఫ్ తమిళనాడులో 1990లో ప్రారంభించారు. 34 సంవత్సరాలైన ఎలాంటి చిన్న నష్టం కానీ, ప్రకృతికి కష్టం కానీ, ప్రాంత ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కానీ తమిళనాడులో జరగలేదు. ఇవాళ దేశంలో 2వ విఎల్ఎఫ్ వికారాబాద్ ప్రాంతంలో, మన ప్రాంతంలో రావడం, ఈ ప్రాంతానికి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు స్పీకర్ గారు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, ఈ జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రిగా నేను ప్రాతినిధ్యం వహించడం, మన హయాంలో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారే స్వయంగా రావడము, ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రాధాన్యత తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాలి. వివాదాలకు తెరలేపుతున్న వాళ్ళు దేశ భద్రత గురించి, దేశ రక్షణ గురించి ఆలోచన చేయాలి. దేశం ఉంటేనే మనం ఉంటాం, మనం ఉంటేనే మన ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతుంది. దేశ రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రాజెక్టులను కూడా రాజకీయాల కోసం వివాదం చేసే ప్రయత్నం చేసే వాళ్లకు కనువిప్పు కలగాలి. 2017లోనే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే ఈ భూ బదలాయింపు కానీ, అదేవిధంగా ఈ చెట్లు వీటిని ఇంకా ఫారెస్ట్ని అభివృద్ధి చేయడానికి నిధులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం కానీ పూర్తి స్థాయిలో గత ప్రభుత్వంలోనే ఈ నిర్ణయాలన్నీ జరిగినాయి. ఈరోజు నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించుకోవాలని చెప్పి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు నన్ను అడగడంతో అధికారులందరినీ కూడా పిలిచి తక్షణమే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు కొనసాగించాలి, దేశ భద్రతకు సంబంధించిన విషయంలో మనం రాజీ పడకూడదు అని
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు కొనసాగించను. పర్యావరణ రక్షకులకు, పర్యావరణ ప్రేమికులకు నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఉంటేనే ఈ పర్యావరణం గురించి మనము చర్చించుకుంటాము. దేశ భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడే పరిస్థితుల నుంచి కాపాడడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రాజెక్టును వివాదాస్పదం చేయడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहीं से एमएलए हूँ. मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है. जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं. कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से. क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं. हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री. तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है. राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है. इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो ये देश को रक्षा कर सकते हैं. हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है. तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए. यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए. 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए. आप बेफिक्र हो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे. जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए, ये VLF आगे बनाने के लिए. आगे यहाँ पर मैं आई वांटेड टू टेल इवन नेवी ऑफिसर्स ऑल्सो, my government is there to support for construction and other things. Only my request is that यहाँ पर रामलिंगेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ लोगों का बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है. लोग आने के लिए, जाने के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंटिमेंटल वैल्यू. हम लोग मानते सब यहाँ के जनता को वहाँ जाने के लिए आप रास्ता देना. और दूसरी बात रहा, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है तो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए अगर आप लोग जगह दिए तो वो लोग कुछ सीख सकते. क्योंकि नेवी इंटरेक्शन, नेवी स्टाफ से अगर यहाँ के विद्यार्थी लोग अगर इंटरेक्शन हो गए तो उन लोगों को भी कुछ एलिवेशन, कुछ सोचने के लिए आगे भी उन लोगों के लिए अच्छा होगा. आगे आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना चाह रहे, कम से कम 1/3 ऑफ द एडमिशंस यहाँ के लोकल, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए दिए तो ठीक रहेगी. ये 2-4 जगह में आप लोगों का मदद जरूरी है, और पार्टी हमारे सरकार तो आपके साथ रहेंगे. कोई भी कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बनाने दो, उन लोग ऐसे बोलते जाएंगे, हम लोग ये पूरा काम खत्म कर लेंगे, अच्छा डेवलपमेंट लेकर जाएंगे. तेलंगाना सरकार आपके साथ है. धन्यवाद. वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की स्थापना करने जा रहे हैं. यह हमारे मैरीटाइम फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्थापित करने की कड़ी में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है. और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांड सेंटर्स के साथ समुद्र में तैनात हमारी शिप्स
और सबमरीन्स के बीच एक स्ट्रांग और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह डेवलप करेगा। और यह स्टेशन हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने की इसी विजन के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ बनाया जा रहा है। साथियों, कई बार हमारे पास इक्विपमेंट भले ही ज़्यादा हों, मैन पावर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उस स्थिति में भी अगर हमारे पास सटीक सूचना नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे बाकी के सेंटर्स के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमारे लिए निर्णय लेने में बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन का न होना हार और जीत के बीच एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए इस वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का महत्व है। साथियों, हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन न हो तो लाख एसेट्स होने के बावजूद हम बढ़त हासिल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का होना है। साथियों, आज हमारी नेवी के पास बड़ी संख्या में शिप्स हैं। मैं नंबर नहीं बतलाना चाहता हूं, बड़ी संख्या में हमारी नेवी के पास इस समय शिप्स हैं। इसके अलावा भी ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीप सी, गहरे समुद्र में कार्यरत हैं। भारतीय नौसेना के अनेक जहाज व अन्य प्लेटफॉर्म पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फैले हुए हैं। भारत और हमारी नौसेना का स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ईस्ट से मलक्का स्ट्रेट से वेस्ट में गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में तो हमारी भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभर कर आई है। एक और महत्वपूर्ण बात पिछले कुछ वर्षों से तेजी से देखी जा रही है मेरे साथियों। आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों का ध्यान मैरीटाइम रिसोर्सेज की ओर जा रहा है। आज कई मिनरल्स, कई रेयर अर्थ इत्यादि जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इन मैरीन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पावर्स हिंद महासागर क्षेत्र में आने के लिए होड़ लगा रखी है। तो चाहे वह व्यावसायिक दृष्टि से हो या फिर सिक्योरिटी का दृष्टिकोण हो, हर दृष्टि से हमारी नौसेना के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने आप को लगातार मजबूत बनाए और इस क्रम में उसके कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना यह और अधिक आवश्यक हो जाता है। साथियों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस भी देश ने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है, जो शक्तिशाली बने हैं, उन्होंने एक समय में समुद्र पर डोमिनेट जरूर किया है और फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने समुद्र में अपना इफेक्टिव प्रेजेंस इन लोगों ने दर्ज कराई है। इस स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन तथा रिसोर्सेज के कंपटीशन में अगर भारत को अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स का यह होना तो जरूरी है ही, परंतु इसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का भी एक मजबूत होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी, आज इसका जो यहाँ पर शिलान्यास हुआ है उसका एक महत्व है। एक मजबूत कम्युनिकेशन ही हमें मजबूत डीप सी फोर्स बने रहने में सहायता प्रदान करता है। साथियों, आप लोग में से शायद कुछ अवगत होंगे कि अभी तक भारतीय नौसेना 30 साल से ज़्यादा पुराने INS कट्टा बोमन के माध्यम से ही डीप सी में अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आधुनिक होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, वैसे वैसे एक नए वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा था। यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन हमारी नौसेना की इस आवश्यकता को पूरा करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। यह न सिर्फ हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना को तथा हमारे मैरीटाइम फोर्स को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
साथियों, मैं अनेक मंचों से इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि हमारे वर्तमान के जो भी कार्य हों वह सिर्फ कुछ समय को ही ध्यान में रखकर नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि हमारा दृष्टिकोण फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। भविष्य की ओर हमें बराबर अपनी नज़र रखनी चाहिए। सरकार में भले ही 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन सरकारों का दृष्टिकोण सिर्फ 5 वर्ष का नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले कई दशकों का होना चाहिए। शायद इसी सोच के आधार पर यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने इस लैंड को प्रोवाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम यदि कोई स्टेशन या फिर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट स्थापित करते हैं तो उसको हम सिर्फ कुछ समय के लिए ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए साथियों कि आने वाले कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक किस प्रकार से वह हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी सेना की ताकत को अपनी सेवाएं वह दे पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन हमारी उस योजना के अनुसार काम करेगा और आने वाले कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक हमें सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह प्रदान करेगा। साथियों, सरकार भारतीय नौसेना को लगातार और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाने के लिए भी हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी नौसेना को लगातार अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से एक और बात का यहाँ पर आप सबके बीच जिक्र करना चाहूँगा। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आसपास के कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूजन थी तथा इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को लेकर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थीं। मैं इस मंच से इन सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार खुद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो चाहे इसके निर्माण की बात हो या फिर इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बात हो, हर क्षेत्र में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जानकारी आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने दी है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण के समय अगर जरूरत हुई तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं शायद आवश्यकता इसे न महसूस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह एक है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथियों, आप देखिए कि पिछले 35 वर्षों से INS कट्टाबोमन में जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन इस समय कार्यरत है, उसने भी वहाँ लोकल इकोसिस्टम पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दिया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आज सुरक्षित हैं, कोई भी जाकर उसे देख सकता है। न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वह फल फूल भी रही हैं। हम इस VLF स्टेशन में और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े और आसपास के लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट और उसके क्रियान्वयन के दिशा में हम आगे बढ़ें। साथियों, इसके साथ ही ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम खोलेगा, यह भी आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इसके निर्माण के दौरान तो यहाँ आसपास के क्षेत्र के जो स्किल्ड यानी कुशल और अनस्किल्ड जो अकुशल हैं को रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार भी मिलेगा और लेकिन निर्माण के उपरांत जब यह स्टेशन कार्य करने लगेगा उस समय भी यहाँ आसपास के लोगों के लिए रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद रहेंगी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। साथियों, मेरी समझ में यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन इस क्षेत्र के लिए सिर्फ रोजगार बढ़ाने का ही नहीं बल्कि ग्रोथ पोल का भी यह काम करेगा। आप सब ने ग्रोथ पोल की थियरी के बारे में
कुछ लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने सुना होगा। ग्रोथ पोल दरअसल एक ऐसा क्षेत्र होता है जो खुद तो विकसित होता ही है, लेकिन अपने साथ साथ वह आसपास के क्षेत्रों का भी को विकसित करता है, उसे ग्रोथ पोल कहते हैं। इस क्षेत्र में बन रहा यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन उसी ग्रोथ पोल की तरह आसपास के क्षेत्र में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करेगा। साथियों, इस प्रोजेक्ट को कल्पना से कागज पर और कागज से जमीन पर उतारना आसान काम नहीं था। इसकी प्लानिंग, इसकी तरह तरह की क्लियरेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और अनेक प्रकार के कार्यों में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के लीडर्स और अधिकारियों और यहाँ की जनता का जो मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी का, यहाँ रहने वाले लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना यह प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता था। जिस तरह से आप सबका सहयोग रहा है, वह यह दिखाता है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, जब देश की संप्रभुता की, सॉवरेंटी की बात आती है, तो उस समय यह देश के सभी लोग तमाम विचारधाराओं, धर्मों व पंथों के ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। यह हमारे भारत की विशेषता है। यहाँ तक कि अलग अलग राजनीतिक दल भी, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, वह बाकी समय भले ही अलग अलग हों, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की आती है तो हम सभी एक मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आज हम सबको एक मंच पर इकट्ठा आप यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे वह अलग अलग राज्य की सरकारें हों, क्षेत्रीय दल हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह सभी एक हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ यह आज का कार्यक्रम है। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, जो लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी, ए गुड नेवी इज नॉट ए प्रोवोकेशन टू वार बट ए श्योरिटी ऑफ पीस। हमारी इंडियन नेवी भी बे ऑफ बंगाल समेत पूरे इंडियन ओशन रीजन में शांति की सबसे बड़ी गारंटी है, यह मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है, उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफोर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफोर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, मित्र पड़ोसी देशों के साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। साथियों, अंत में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक बार फिर से इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के शिलान्यास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय नौसेना और तेलंगाना सरकार को भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की हार्दिक बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपनी तरफ से कुछ बातें करने का अवसर दिया, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देते हुए और पुनः इस बड़े प्रोजेक्ट की जो यहाँ शुरुआत हो रही है उसके लिए आपको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।